جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جی وَلَا تَأْخُذُكُم بِشَيْءٍ مِّن خَوْفٍ وَلَا جُوعٍ وَنَقْصٍ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصیبۃ قالوا إنا للہ وإنا إلیہ راجعون۔ کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں ہو تو اس کو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ریٹرن ٹو اللہ، وی بلانگ ٹو ہم، ہی از اوور ریٹرن، اس کی طرف سے بھی ہمیں دوبارہ جو ہے ریٹرن ملے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی ریٹرن دینے والا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ واپس جو ہے وہ چیزیں دینے والا ہے، وچ سم تھنگ آف دا فیئر اینڈ ہنگر، جو ہمیں بھوک پیدا کرتا ہے یا کہ ہمیں خوف دیتا ہے، سم لاس آف دا گڈس اور لائفس اور دا فروٹس، کچھ چیزیں جو ہم ختم کر دیتے ہیں، ہمیں لاس ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کو جو ہے ورزش ضرور ہے اس طرح بیٹھے بیٹھے ساری چیز چھوڑو دی کر دی انشاءاللہ۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب جو مطلب کہ میں آرام کرنا رات نو جی ٹھیک ہو جائے گی جی شروع کے سر جی جی and the hunger, some loss of the goods, lives and food of your toil, but give glad tidings of those who plenty preserve, who says that efficient and the calamity. To God, we belong to Him. He is our turner. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تمام چیزوں کو واپس دینے والا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آنکھیں ہیں، بیسیکلی آئین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی آنکھیں چھین لیتا ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ نروس ہوتا ہے، کتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس کو۔ تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آنکھوں کے امراض کے بارے میں ہم بعد میں جانیں گے۔ آنکھوں کے بہت سے امراض ہیں اور ابتدائی ٹریٹمنٹ جو ہے آنکھوں کے بہت زیادہ ہے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے آنکھوں کے بارے میں جو ہے جس کو عین کہا گیا ہے، اس کی آج جو ہے ہم ایک اسپیشل برانچ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جس میں پرسنالٹی اینڈ آئیز ہے، یعنی کہ شخصیت اور آئی۔ تو اس میں جو ہے وہ پرسنالٹی اور آئی کے بارے میں ہم جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو جس کی آنکھیں نہیں ہوتے اس کی جو ہے اس کی قدر جو ہے وہ نبینا ہی جانتا ہے۔ جس کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو جب کسی سے چھین لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں وہ جس بندہ خدا بشر جو ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو کیا چیز چھین لی گئی ہے۔ تو آنکھیں جو ہے وہ بہت زبردست نعمت ہے اللہ کی۔ اس کے بغیر انسان دیکھ نہیں سکتا، انسان پڑھ نہیں سکتا، انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے لیکن اگر کوئی محنت کرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندر کی آنکھیں، اس کی نور کی آنکھیں، اس کی جو ہے وہ بصیرت کی آنکھیں اس کو جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ بصیرت کی آنکھیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے یہ ہم تھوڑا سا بیان کر کے آگے چلتے ہیں۔ حسرت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خصائل جتنے بھی تھے وہ بہت پیارے تھے اور ان پر جو ہے وہ ہزاروں اور کروڑوں درود و سلام۔ تو اس طریقہ سے آنکھوں کی ابتدائی جو ہے وہ ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروانا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آنکھیں جو ہے وہ پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ آنکھوں میں جو ہے وہ دیکھ کے ہمیں کسی چیز کی شخصیت کا جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ ہمیں آنکھوں کے کسی بھی شخص کے متعلق جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ باتیں جو زبان تک آ نہ سکی
आंखों ने कही, आंखों ने सुनी। तो इस तरीके से जो है आंखें हमारी जो है कुछ ऐसी जो है अल्लाह की नेमत है जिससे हम जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो देख सकते हैं। यानी कि जो है वो जो हमारी जुबान पे बात नहीं आती हम आंखों से जो है वो समझ जाते हैं और जान जाते हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। हम आंखों की बीमारियों के मतलब जो है वो बाद में जानेंगे। तो आज हम जो है वो एक आंख ना पाना जो है इसके मतलब भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक मुहावरा है। और इसी तरीके से हमने कहानी पढ़ी थी 3 days to see, मतलब कि जो है मुझे 3 दिन देखने के लिए एक अंधी औरत को जो है वो इस नेमत को जो है वो बयान करती है कि अगर मुझे 3 दिन देखने के लिए मिल जाए तो मैं जो है वो किन किन चीजों को देखेंगी। तो बहुत ही जो है ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है। तो आंखें किसी भी शख्स की रूह का आईना होती हैं। किसी शख्स की आंखों में जो है वो महज देख लेने से आपको उनके एहसास, मतलब कि हमें आंखों से वो एहसास, आंखों ने कहा आंखों ने सुना, ठीक है जी। बातें जो जुबान तक आ नहीं सकी तो एहसास, जज्बात और मजाज का इल्म हो जाता है। किसी शख्स की आंखें चमकदार, पुरकशिश और पुरअसरार होती है। खास तौर पे जो बुरके वाली और नकाब वाली औरतें होती है उनकी आंखों के मुतालिक जो है खास मेरे बहुत से दोस्त जो है जानते होते हैं कि वो जो है बड़ी पुरकशिश और जो है वो बेराह हो सकती है। जो भी हमको नजर डालने से मालूम हो कर सकते हैं कि इस किस्म की जो है वो हर शख्स की आंखें जैसी बड़ी खूबसूरत नेमत से मालामाल है। हर रंग की आंखें जो है वो जोड़ा अपने खूबसूरत अंदाज में मुफरद और दिलकश नजर आता है। जैसे बड़ी जो है वो हम अक्सर असखास की आंखें को बहुत ज्यादा जो है पसंद करते हैं जो इंतहाई खूबसूरत और एक ही नजर में जो है वो दिल मोह लेती है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो उससे जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश हम भी ऐसी पुरकशिश आंखों के मालिक होते। लेकिन हमें इस हकीकत को याद रखने की ज़रूरत है कि हम बनाई जैसी अजीम नेमत से आसूदा है। यानी कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें देखने का जो है वो मौका दिया है। हजरत मैं पीछे भी जो है इसको बयान कर चुका हूँ पहले भी अपने लेक्चर के अंदर कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो है एक बार जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार रोज जूता मेरा टूट जाता है मोची के पास। तो उन्होंने जब देखा कि सामने एक जिसके पाँव नहीं थे वो बंदा आ रहा था तो वो उसी वक्त सजदे में गिर गए, यार नहीं मेरे पाँव तो है, जूता तो फिर भी मरम्मत हो जाता है। तो ये आंखें जो इसके तो नियमत है कि यार नहीं हमारी आंखें तो है, ये बेशक खूबसूरत नहीं है लेकिन देखने वालों की नजर में हर आंख जो है वो खूबसूरत होती है। जो उसको देखता है ना वो उसको जो है वो खूबसूरती को जाहिर करती है, हर आंख बा जाती है। तो इस तरीके से जो है मुख्तलिफ रंग को अक़साम की जाज़िबे नजर आंखें हमें अपनी तरफ राग़िब करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुख्तलिफ रंगों वाली आंखें ना सिर्फ आपकी जो है वो शख्सियत को ज़ाहिर करती हैं बल्कि आपकी जो है वो जिंदगी के खूबसूरत अनासर को भी ज़ाहिर करती हैं। आंखों से देख के जो है वो हमें ना और हाँ का भी पता चल जाता है कि हमें जो है वो ना और हाँ की जरूरत है। इसी तरीके से बल्कि हमें जो आंखों से उनकी शख्सियत पर जो है वो जो भी असर होता है उसका भी हमें पता चल जाता है। तो हमें जब मरीज की एक मालिज को मरीज की आंखों में आंखें डाल के जो है बात करनी चाहिए। हमारे एक तैयब ऑफिसर थे हकीम अजहर अब्बास साहब, तो वो जो है वो औरतों से जो नजर झुका के बात करते थे। मैंने कहा कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। वो इतने शर्मीले थे कि वो जो है वो कभी भी उन्होंने औरत को जो है वो ऊपर से आंख उठा कर नहीं देखते थे। तो इस तरीके से आंखों में जो है वो उनके जो है वो इतनी ज्यादा शर्माहट थी तो आस्ता आस्ता तक ऑफिसर को मैंने जो है वो एज ए तबीब बना दिया कि वो आंखों में आंखें डाल के जो है बात करनी उन्होंने शुरू कर दी। वो नजरें झुका के सिर्फ मरीज से पूछा करते थे और बड़े अच्छे तबीब है, जबरदस्त तबीब है। हमारे अम्मीपुर बंगले में आप प्रैक्टिस करते हैं तो उनका मैं कायल हूँ, उनके नुस्खों का कायल जामिया तिबिया से पढ़े हुए हैं। और उनके मैं जो है वो बेशक मेरे जो है वो एज ए असिस्टेंट काम किया, उन्होंने एज ए टेब ऑफिसर जो है काम किया, हाउस ऑफिसर टेब हाउस ऑफिसर काम किया। लेकिन जो है उनकी शख्सियत, उनके जो है वो कारनामे जो है वो अभी तक मुझे याद है। इसी तरह से हमारे एक और मुझे याद आ गए दोस्त हाफिज साहब, हाफिज बलाल साहब, वो भी हमारे पास जो है वो एज असिस्टेंट काम करने के लिए तशरीफ लाए थे। तो उनकी एक खूबी ये थी कि जैसे कि हमारे
असल में उन्होंने जो जब कागज जमा करवाए हमारे एज असिस्टेंट के लिए, तो उन कागजों में जो है टेब ऑफिसर वो नहीं हो सके, और टेब हाउस ऑफिसर, क्योंकि उनकी एक मसला था रिजल्ट कार्ड के अंदर। रिजल्ट कार्ड के अंदर ये एलसीटी का जो प्रॉब्लम था, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टेब ने जो है उनका जो रिजल्ट कार्ड भेजा था, उसमें जो है ये जैसे कि हमारे यहाँ पे अपना बीएमएस डिपार्टमेंट में हो रहा है कि उनके जो है वो थ्योरी में से जो उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है किसी सब्जेक्ट के अंदर उनके रिजल्ट कार्ड के अंदर जो है थ्योरी में उनके नंबर 75 में से जो है 20 नंबर थे, जबकि प्रैक्टिकल के नंबर जो है वो 25 से जो है 33 नंबर थे। मतलब ये है कि हमारे क्लर्क जो है वो सर पकड़ के बैठ गए कि 25 में से 33 नंबर कैसे आ जाते हैं, जैसे 100 में से 56 नंबर आ जाते हैं। तो ये बड़ा मतलब जो है वो अजीब बात है कि जो है इस तरीके से जो है वो मतलब जो है जब भी हम उनसे पूछते तो वो कहते काउंसिल की गलती है। मतलब उन्होंने ऐसे हुआ कि प्रैक्टिकल की जगह पे थ्योरी के नंबर लगा दिए और थ्योरी की जगह पे प्रैक्टिकल के नंबर लगा दिए, तो इस तरीके से उनका रिजल्ट जो है 25 में से 33 नंबर आ गए। 25 में से 33 नंबर उनके प्रैक्टिकल में से आ गए, और इस तरीके से जो है 75 में से 20 नंबर जो है वो उनके थ्योरी से आगे, इसलिए आते तो फेल थे वो, तो इसलिए उनको जो है टेब हाउस ऑफिसर करने का जो मौका ना मिला। लेकिन मेरे पास काम खातिर है कि इसकी जो है वो काउंसिल की गलती की वजह से उनको ये मौका जो है वो उन्होंने खो दिया। तो आज हम और भी आंखों के मुतालिक जो है बात करते हैं। तो उनके जो है वो 100 में से जो है वो अक्सर हम उनको मजाक किया करते थे, आपके 100 में से जो है वो 115 नंबर आ जाते हैं, तो आपको तो एक्स्ट्रा नंबर दे दिए गए हैं, काउंसिल तो आपको एक्स्ट्रा नंबर दे दिए, काउंसिल आपके ऊपर बहुत ही मेहरबान है। तो ये थोड़ी सी गलती बात पर रिजल्ट कार्ड में हो जाती है। तो स्याह आंखों के मुतालिक बात करते हैं। स्याह आंखों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि दरअसल हकीकी तौर पे स्याह आंखें जो है नायाब है। वो आंखें जिन्हें जो है हम देखकर स्याह समझते हैं वो गहरे भूरे रंग की होती है। स्याह आंखों को तारीखी असरारियत और इल्हाम का से मुबस्सा किया जाता है, लेकिन ये लोग काबिल एतमाद होते हैं, अच्छे राजदार होते हैं और इनके राज अया नहीं करते किसी के भी, और जो है किसी पर जो है एतमाद नहीं होते, दोस्ती करने वाले और मोहब्बत करने में जो है वो ग्रेज नहीं करते, बल्कि जो है जब इनसे रिश्ता कायम किया जाए तो आखिरी हद तक जो है वो वफादारी का साथ जो है वो देते हैं और इंतहाई मेहनती और अमली होते हैं। तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अमली होना चाहिए। हम जो है जब तक प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या कि हमारे फादर तो गुजरात है, जब तक प्रैक्टिकली तौर पे जो है किसी चीज को नहीं सीखेंगे उस वक्त तक जो है कामयाब नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो है मैं एक बात और वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, तो हम जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जो है वो हर बंदे को आने की कोशिश करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल लोग जो है वो ज्यादा कामयाब होते हैं। तो इस थ्योरी भी जाननी चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा जानने चाहिए। तो इस तरीके से ये लोग पुरजोश रूहानी तौर पर पुरउम्मीद होते हैं और हमेशा अपनी काबिलियत दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तो ये जो है असल में जो है ये निज़ाम जिंदगी से को इनके मुतासर करते हैं खास तौर पे। तो ये जो है वो पीरियड लाइफ को जो है वो गुजारते हैं। तो पीरियड लाइफ जो है ये आप समझते हैं क्या होती है जी। तो इसके बाद जो है ब्राउन और बुरी आंखें। तो ये मरीज जो है जब आंखों में आंखें डालकर बात की जाए तो मरीज इसको जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। हम तो मरीज कहता है कि मेरी बात को तवज्जो से सुन रहा है। तो जब हम आंखें इधर उधर कर लेते हैं तो मरीज ये समझता है कि मालिक मेरी बात जो है तवज्जो से नहीं सुन रहा। दुनिया में सबसे आम जो है पाया जाने वाला रंग ब्राउन है। मेरी आंखों का रंग भी ब्राउन है। आप गौर से देखेंगे तो मेरे जो है वो आप ब्राउन आंखों वाला जो है पाएंगे। इसमें जो हल्के से लेके जो है वो दरमियानी ब्राउन जो है ये मेरा गहरा ब्राउन जो है वो कलर है। गहरा ब्राउन और ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरीके से जो है ब्राउन आंखों वाले पुरकशिश पुरइतमाद होते हैं
اور ٹھوس اور عمدہ رنگ کے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ جو ہے زمین سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ان لوگوں کی آنکھیں براؤن ہوتی ہیں اور سادہ، مثبت اور خیالی خوبیاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، خود مختار اور شائستہ دل ہوتے ہیں۔ ان کے دوست بنانا جو ہے وہ بے حد پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کچھ نیا کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ یہ عملی طور پر ہوتے ہیں، لیکن جب بات ان کے پیاروں پر آ جائے تو یہ عملیت کی جگہ پہ محبت اور پرواہ لے لیتی ہے، محبت جو ہے وہ اور پرواہ لے لیتی ہے۔ یہ عام طور پر خوش اخلاق ہوتے ہیں جو زمینی ملکیت کی فطرت کو ترجیح دیتے ہیں اور وقت اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، اور زبردست، قابل اعتماد اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس آپ مدد کے لیے بھی وقت کافی ہوتا ہے اور دوسروں کے جو ہے وہ خوش رکھنے اور مطمئن کرنے کے لیے جو ہے ہر درجے تک یہ چلے جاتے ہیں۔ نیلے رنگ کی آنکھیں، جس کو بلا بھی کہتے ہیں جی، بلے والی آنکھیں جو ہے، تمہارے ایک دوست طارق صاحب ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے خوبصورت ان کا کلر ہے۔ بلے کی آنکھیں جو انگریزوں میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے، تو اس طرح سے انگریز جو عورتیں جو ہے ان کی آنکھیں بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو میں نے ان کو ہوشیار، چلاک اور جو ہے یہ پھرتی والے لوگ دیکھے ہیں۔ تو نیلے اور بلے والی آنکھیں جو ہے، یہ نیلا رنگ جو ہے بے حد خوبصورت پسند کیا جاتا ہے۔ آنکھوں میں تازگی اور روح کو سکون میسر ہوتا ہے اور یہ بے حد پسند کی جاتی ہے۔ یہ خوبصورتی کی بہت زیادہ علامت ہوتی ہے۔ تو جن عورتوں کی آنکھیں جو ہے یہ نیلے رنگ کی ہوتی ہے، بلو کلر کی ہوتی ہے، ان کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا رنگ جو ہے آنکھوں کا نیلا ہے، جس میں جو ہے کوئی بھی اس میں جو ہے وہ عذر نہیں ہے۔ پرامن، عقل مند، مہربان، جوانی اور زندگی کے بھرے ہوئے نیلی آنکھوں والے لوگ دیر پر رشتے رکھتے ہیں اور توانا ہوتے ہیں، اور اس طریقے پھرتی بھی ان کے اندر بہت میں نے دیکھی ہے۔ انگریزوں کے اندر جیسے پھرتی ہے، یہ فطرتی خواہش کو یہ اپنے پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے رکھتے ہیں، بے حد مہربان اور پرخلوص ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی جو ہے وہ دوسروں کی خوشی کے لیے جو ہے وہ گہری غور و فکر ان کے اندر ہوتی ہے، اور دوسروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ خوشک خرم رہتے بھی ہیں، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی قربانیاں دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسا رشتہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس میں جو ہے وہ ہم سب خوش رہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بہت پیار محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ گرے یا سرمئی رنگ والے جو ہے، جیسے ہمارے عمران خان کی آنکھیں ہیں جی، یہ افراد جو ہے بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں جی۔ ان میں جھوٹ اور فراڈ جو ہے بہت کم ہوتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کے اوپر باثر ہوتے ہیں، بلکہ یہ گرے آنکھوں والے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پیدائشی باثر اور رہنما ہوتے ہیں۔ فطرتی طور پر مضبوط، دانشمند اور نرم مزاج ان کے اندر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ انتہائی شریف ہوتے ہیں، اور سرمئی آنکھوں والے لوگوں کم غصے کے مالک ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے اندر جذبہ محبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خواہ پیشہ کوئی بھی ہو، ذاتی معاملات اور محبت اور رومانس بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور تخلیقی اور تخیلی جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کی 3 خوبیاں عظیم رہنما کے پاس ہوتی ہیں، یعنی کہ اندرونی طاقت، تجزیاتی اور سوچ، عقلیت، اور ہمیشہ جو انہیں خوبصورت اور صورتحال میں کامیابی دلاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال جو ہے وہ آپ کے آس پاس بہت زیادہ ہے، اور یہ مثبت کمپنی کا جو ہے مالک ہوتے ہیں۔ میرے ٹیچر جو ہے ڈاکٹر اظہر رسول صاحب، ان کی آنکھیں بھی جو ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہیں، بڑی پیاری سی، اور اسی طریقے سے نرگسی آنکھیں ان کی بھی ہے، اور غلام حسین صاحب جو ہے یہ ان کی آنکھیں بھی ایسی ہیں۔ تو ولی کی نگاہ، اللہ کی نگاہ، نظر کرم جب ہو جائے تو عین الحق بن جاتا ہے، تو عین الحق عین الیقین کے اندر بدل جاتا ہے۔ عین الحق جو ہے وہ عین الیقین کے اندر بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین الیقین کی بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ سبز آنکھیں جو ہے، تو سبز آنکھیں، گرین آنکھیں جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بتائی جاتی ہیں۔ سبزہ اور ہریالی ہمیشہ جو ہے وہ تازہ
हवा की तरह से होते हैं, सब्ज आंखें की तरह तेज और ताज़ा हवा के झोंकों की तरह होते हैं। इस तरह आंखें में देखने से जो है वो इतने लोग पुरकशिश और जो है वो दिल फरेब होते हैं कि हमें लम्हों जो है वो रागव कर लेते हैं। देखिए वो तजस्सुस सबज आंखों वाले लोग जो है हमेशा कई नई चीजों में दिलचस्पी रखते हैं और जिंदगी में नाकाबिले यकीन जोश व बलबला इनके अंदर होता है और बहुत ज्यादा चीजें जो है इनके बारे में पुरजोश होती है और जाहिर करती है कि आंखों में जो है वो इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ज़हीन और फतीन है। इस तरीके से पुरकशिश और खूबसूरत आंखें जो है बहुत मनफी अंसर जो है इनके अंदर जो है मौजूद होता है, जिनके बहुत जल्द जलने लगते हैं और लेकिन मजमूई तौर पर मुस्बत अंसर जो है वो मनफी अंसर को शिकस्त दे देता है और यहाँ भी जाते हैं हमदर्दी और जोश को जाहिर करते हैं। तो मोबाइल ज़्यादा आंखों इस्तेमाल करने से जो है वो हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। आंखों की खराबी को दूर करने के लिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो अरक के गुलाब के कतरे डालें, सुरमा डालें और इस तरीके से जो दीगर चीज़ें डालें। मोबाइल का जो है वो रोशनी में इस्तेमाल करें और कम रोशनी में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अंधराते का मर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, इससे हमें बचना चाहिए। मेरे पास एक मिसाल है, हमारे पास सोशल वेलफेयर ऑफिसर हमारे साथ बिल्कुल बैठते हैं, उनको 4 आंखों की बीमारियां हैं। तो जब हम आंखों की बीमारी डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है वो उनमें जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है सबसे पहले और वो फोटोफोबिया उनके अंदर मौजूद है। फोटोफोबिया कहते हैं रोशनी से मुतासर, मतलब वो जो है रोशनी को देख नहीं सकते, जब भी रोशनी होती है तो उनको नजर नहीं आता। तो ये दिन के वक्त उनको फोटोफोबिया है, रात को जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस उनको है और भी उनको जो है 2-3 अमराज है, लेकिन वो खुद भी सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उनकी किस्मत है, उन्होंने जब पढ़ा है सुना है और पेपर किसी से जो है वो जो गवर्नमेंट ने इजाजत दी है कि आप किसी से लिखवा सकते हैं, तो इस तरीके से उनकी जो है कामयाबी का राज है। तो ब्राउन और ग्रीन आंखें जिनको हंजल कहते हैं, ये आंखें जो है दोनों कलर से मिक्स होती हैं। आंखों का रंग जो है वो हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत नजर आता है। खूबसूरती का पहला लफ्ज जो है इनके अंदर हंजल आंखों वालों के अंदर जो है वो बेसाख्ता, ये जितने पठान है ना, ये वाले बलूचिस्तान के इलाके में, अफगानिस्तान के इलाके में और खास तौर पर जो है हमारे वहाँ कलाश के इलाके में इतनी प्यारी उनकी आंखें हंजल वाली आंखें हैं। उनकी औरतों की आंखें तो बहुत प्यारी है और मर्दों की आंखें भी इंतहाई ज्यादा खूबसूरत है। जितने हमारे हमारे मुल्क में मिस्र के जो खूबसूरती जो है, मिस्र वाले लोगों की आंखें बिल्कुल ऐसे हैं। मैं जो है वो मिस्र के लोगों को देखा, उनसे मिला हूँ, तो लंबे लंबे कद की औरतें, लंबे लंबे कद के मर्द और बहुत खूबसूरत लोग और इंतहाई मोहब्बत करने वाले। तुर्की और ये तुर्की के लोग भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बेसख्ता मोहब्बत करने वाले बिल्कुल ऐसे ही है। तुर्की लोग इतना प्यार करते हैं, आपको इतना प्यार देते हैं कि आप जो है वो यू आर पाकिस्तानी या साहब पाकिस्तानी, वो वेरी गुड, इस तरह से प्यार करते हैं। किसी भी सूरत हाल को खुद पर डाल लेना जो है इनकी काबिलियत होती है। बहादुर और बाहिम्मत लोग जो है और माहौल को बदलने वाले बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इन्होंने बताया है कि बहुत ज्यादा जो है इस तरह के होते हैं और सलाहियत इनके अंदर होती है और आसानी से जल्दी से बोर हो जाते हैं और नई चीजें दोबारा पसंद करते हैं। हल्कल आंखों वाले जो लोग खूबसूरत इनकी तरह रागब होते हैं, लेकिन ये लोग अपने तल्लुकात को ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सकते। तो जब तक आप जो है वो इनको खास ना हो जाए उस वक्त तक ये जो है वो तल्लुकात को बरकरार नहीं रखते। तो श्रीलंका के अंदर बहुत से मुसलमान मौजूद हैं, मतलब 4% आबादी जो है मुसलमानों की है। उनकी आंखें भी जो बिल्कुल हल्दल आंखें हैं, बहुत प्यारी हैं। बेशक उनका रंग जो है थोड़ा सा गंदगी है, लेकिन उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं। तो वो लोग शरारती और हसास भी होते हैं। ये चीजें जो है वो जानने की जरूरत है कि हम जो है वो गर्म मिजाज, ये लोग गर्म मिजाज होते हैं और इनका संभालना जो है मुश्किल होते हैं, ये जल्दी तैश में आ जाते हैं। खासतौर पर अरबी लोग और ये मिस्री लोग जो होते हैं ना, ये बहुत जल्दी तैश में आते हैं। लेकिन जो अपना तुर्की के लोग हैं ये बड़े मतलब तहम्मुल मिजाज होते हैं और खास तौर पर अबू धाबी के लोग भी बहुत तहम्मुल मिजाज होते हैं। इस तरीके से हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जनरल रहील की आंखें जो है वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि ये हमारे हंजल आंखें हैं। तो इस तरीके से आंखों का अतिया देना जो है वो सदका जारिया है।
जब आप आंखों को जो है वो अतिया करेंगे तो इससे जो है वो डोनेट योर आइज, डोनेट योर आइज, अपने आइज का जो है वो सदका जारिया के तौर पे जो है वो जारी रखें। इस तरीके से BMS अफराद जो है जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है तो वो भी VN टेस्ट के मतलब जो है वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो है तशरीफ ला सकते हैं। उनको हम कंप्यूटराइज मशीन जो है उसके ऊपर बिठा के VN टेस्ट के मतलब जो है बताएंगे VN क्या होती है और इस तरीके से वो इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन गारंटी होनी चाहिए सर की, तो उसके बाद हम उनको जो है इस किस्म के मौका जो है मुहैया करेंगे। जब तक आप लोग गारंटी मुहैया नहीं करते तो हम लोग आपको जो है वो अकोमोडेशन नहीं दे सकते। इसलिए इनका जो है वो सॉरी फॉर, लेकिन हम इनको जो है ये अकोमोडेशन दे सकते हैं गारंटी के साथ। तो आखिर में कुछ चीज़ें जो है ये याद याद कुछ यादें जो है हम इसको याद कर लेते हैं और उसके बाद वाइंड अप करते हैं जी। तो कुछ यादें जो है ये रह गई हैं हमारी जो है, जो हम भी कभी पढ़ते थे, हम भी कभी जवान थे, हम भी कभी खूबसूरत थे। बहुत मुश्किल से भूल पाना, याद आएगी वो क्लास की मस्ती, रहती थी हर वक्त हंसी, वो क्लास के हमेशा लेट आना, अटेंडेंस के लिए शोर मचाना, हर रोज टीचर की डांट सुनना, कभी नजरें मिलाना कभी नजरें झुकाना, कभी नजरें मिलाना कभी नजरें झुकाना। तो ये मैंने इसलिए जो है इसको रखा था कि मैं जो है ये आपको ये उस वक्त टीचर के सामने जो है नजर बुलाना और झुकाना जो है ये बड़ी स्पेशल बात होती थी कि तुम लेट आए, और रमजान हमेशा लेट आता है, 12 महीने के बाद ही आता है। तो मैं हमेशा ये कहता था कि रोज रमजान तो नहीं आता, हर महीने के बाद रमजान तो नहीं आता, 12 महीने के बाद आता है। पूरे 11 महीने गुजर जाए तो 12वां महीना जो है वो रमजान का होता है, तो इसलिए रमजान हमेशा लेट आता है। मगर कुछ ना कह पाना, कि हम टीचर को क्या कह सकते थे। फिर भी जो है वो क्वाइज और कभी जो है वो असाइनमेंट, कहाँ से आएगी अब वो एंजॉयमेंट, करते हैं हम एग्जाम की तैयारी, तो लगती थी रात सारी की सारी। मैंने आपको बताया कि हम जो है नवाब साहब के साथ जो है वो पढ़ा करते थे, तो सारी रात जो है वो जाग के पढ़ा करते थे। तो उस वक्त हम जो है थोड़ा सा कॉपी प्लांट को चाय में डाल के पी लिया करते, फिर फ्रेश हो जाया करते थे। जब कभी हम जाते थे टूर पर तो गाते थे वापसी पर गाने बहुत से, होती थी फिर नींद से हमारी खत्म हो गई, अब वो सारी की सारी, जा रहे हम यहाँ से दूर, आंसू की लड़ी अब आंखों में, कोई है हमारे आंसू को भूल पाए, और अब गुजरे हुए लम्हों को वापस लाए, हम चाह कर भी ना भूल पाए वो 4 साल, वो कुछ लम्हात जो कभी वापस न आएंगे, हम नहीं भूल पाएंगे, हम नहीं भूल पाएंगे। तो कुछ हिकमत के मुताबिक आखिर में गुजारिया कार, हिकमत चीज ही है, हिकमत चीज है ऐसी कि उससे ना जी भर, उससे जी नहीं भरता, पसंद है क्या उसको ये पता नहीं चलता, कभी ढूंढता नबज शनास, कभी चूड़ी नहीं मिलती कभी दिल नहीं मिलता, ढूंढता है नबज शनास, ढूंढता है नबज शनास, कभी चूड़ी नहीं मिलती कभी दिल नहीं मिलता, यूं ही हमें मैसेज मिला मरीज का, हम भी चले हम भी, 11/22 से पहले न पहुंचे हम वहां, तो हो गया महंगा नहीं मिलता। वो एथिक्स जब बुलाना हो हकीम को, तो मेरी जेब खाली हो उसे अच्छा नहीं लगता। तो बहुत शुक्रिया मेरे डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों का और भाइयों का। तो हम जो है इस तरीके से जो है कुछ और भी जारी रखेंगे, तो जिसमें जो है वो पर्सनैलिटी के मतलब व्हाट योर स्लीप्स पोजीशन सेज अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो कुछ हम आंखों की डिजीजेस के बारे में भी जानेंगे। तो एक तबीबा जो है, एक तबीब जो है वो भी जो है वो आंखों के अमराज के मतलब जान सकता है, बीन के मतलब जान सकता है और आंखों का इलाज कर सकता है।
ना सिर्फ जो है वो हमारे भाई इलाज कर सकते हैं, बल्कि हम भी जो है इसमें जो है वो कम नहीं है। तो हमारे पास से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम आंखों के अमराज से जो है वो वाकफियत भी हमें है और हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है ख्वाब भी जो है वो तंज़ो मज़ाक का ख्वाब है, उसके मुतल्लिक जो है आपको ज़रूर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो ख्वाब जो है कि हम हकीम जो है ये आई स्पेशलिस्ट भी बन गए हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट भी बन गए हैं और लिवर स्पेशलिस्ट भी बन गए हैं। तो ये सारी ख्वाब के अंदर जो है वो बड़े ईस्टर्न मेडिसिन का हॉस्पिटल उसके अंदर वजूद में आ चुका है। और ये सारा ख्वाब जो है ये मैं आपको जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है किसी दिन जो है वो आपको सुनाऊंगा। तो ये मेरा मजमून नेक्स्ट मजमून जो है ये शाया हो चुका है। तो इसको आपको सुनाने की जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो है हुक्मा हजरात जो है वो किस तरह से स्पेशलाइजेशन के अंदर जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया मेरे डॉक्टर साहब का और मेरे भाइयों का दोस्तों।